Hello everyone. So welcome to Vet It's You YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. So in this video, we will discuss a very important topic from the veterinary pathology portion, that is urinalysis. So the first question arises, that is, what is urinalysis? So simply, the urinalysis is a series of tests on your urine. बेसिकली सबसे पहले बात आती है कि यूरिन क्या होता है. व्हाट इज यूरिन? So simply it is a series of a test conducted on a urine or the urine collected sample. Basically एक सीरीज है टेस्ट की जो हम कहां पे परफॉर्म करेंगे ऑन द कलेक्टेड यूरिन. दिस यूरिन कैन बी ऑफ एनीवन, इट कैन बी ऑफ एनिमल और इट कैन बी ऑफ ह्यूमंस टू. ओके. So the next question arises that why urinalysis is required, why we are required to perform a series of a test on a urine. So simply the urinalysis is very important in the case of a surgical or geriatric patients, in the case of a kidney disease, in the case of a bladder infection, in the case of neoplasia, liver disease, hemolysis, diabetes mellitus or any type of diabetes insipidus. So देखो भाई, हमने बात करी कि यूरिनालाइसिस क्या होता है. तो सिंपली द यूरिनालाइसिस इज अ टेस्ट दैट इज बीइंग कंडक्टेड ऑन अ यूरिन सैंपल. कि यूरिन सैंपल पे जो भी आपने टेस्ट कंडक्ट करे उसको हम क्या कहते हैं, यूरिनालाइसिस. ठीक है. अब बात आती है कि यूरिनालाइसिस क्यों करने की हमें जरूरत पड़ी. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द यूरिनालाइसिस. सो बेसिकली यूरिनालाइसिस से हमें क्या क्या पता चलेगा. Any kidney disease in that particular animal from which the sample is collected, any bladder infection is there or not, any neoplastic conditions is developing in that particular animal or not, any kind of liver disease, any kind of hemolysis, and types of diabetes, whether it is mellitus or insipidus. Along with this, the urinalysis will also helpful in judging the conditions in the case of a surgical and the geriatric patients. जो भी surgical और geriatric patients हैं, अगर उनकी urinalysis हम करते हैं, बेसिकली उनके यूरिन का हम टेस्ट करते हैं, तो we can judge their condition at which point they are standing, like are they recovering or are there any secondary infections. So simply the urinalysis help in judging these conditions, whether a person is suffering from kidney disease, bladder infection, neoplasia or any surgical and geriatric patients, etc., etc. So now moving on, we will discuss about the collection of a urine sample, that how you will collect a urine sample. So the first point is the container. Clean and the sterile containers can be of glass vials or disposable plastic containers can be used. Catheterization if going for the bacterial culture and sensitivity test. Next is the timing of collection. An early morning sample is usually preferred. Avoid catching the first part of the urine stream of non-catheterized sample. It contains cellular debris, leukocytes and exudates flushed from the urethra, prepuce and genital tract. Next is the timing of analysis. Fresh sample is usually preferred. Contamination with the urea splitting bacteria may result in loss of usefulness of urine for the diagnostic purpose if it is allowed to stand several hours at a room temperature. An important note is that urea basically splits to ammonia and cause alkalization of a urine which dissolves the cells and the cast. Urine preserved by the refrigeration is suitable for the examination for 2 to 3 hours. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द कलेक्शन ऑफ अ यूरिन, कि हम यूरिन सैंपल को किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज द कंटेनर. Clean and sterile containers can be of a glass vials or the disposable plastic containers can be used. ठीक है. हमें क्या करना है, यूरिन का कलेक्शन करना है, तो वी शुड रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर कंटेनर. कंटेनर कैसा हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है और ग्लास का भी हो सकता है. बस उसको कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए एंड स्टेराइल होना चाहिए. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज कैथेराइजेशन इफ गोइंग फॉर द बैक्टीरियल कल्चर एंड द सेंसिटिविटी टेस्ट. ठीक है.
अगर आप यूरिन सैंपल से बैक्टीरियल कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हो, देन यू शुड यूज द कैथेटर फॉर द कलेक्शन ऑफ अ यूरिन फ्रॉम द एनिमल. ठीक है. Next is the timing of collection. An early morning sample is preferred. Avoid catching the first part of the urine stream of the non-catheterized sample because it contains the cellular debris, leukocytes, exudates flushed from the urethra, prepuce and genital tract. देखो, अब हमने क्या करा, यूरिन का कलेक्शन किसमें करेंगे ये देख लिया. वी कैन कलेक्ट इट इन ग्लास वायल्स और द डिस्पोजेबल प्लास्टिक कंटेनर्स. ठीक है. अब बात आती है टाइमिंग क्या होनी चाहिए कलेक्शन की. So simply we will prefer the early morning sample of a urine. ठीक है. जो अर्ली मॉर्निंग सैंपल है यूरिन का, हम उसको प्रेफर करेंगे फॉर द कलेक्शन एंड द फर्दर डायग्नोसिस. ठीक है. We should avoid catching the first part of a stream if the urine is being collected from the non-catheterized samples or the non-catheterized animal because उस यूरिन के पार्ट में क्या होता है, सेलुलर डेब्रिस होते हैं, ल्यूकोसाइट होते हैं, एक्सुडेट्स होते हैं फ्रॉम द यूरिथ्रा, प्रीप्यूस और द जेनिटल ट्रैक्ट दैट विल अल्टीमेटली अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द यूरिन डायग्नोसिस फॉर विच वी आर कंडक्टिंग द यूरिनलाइसिस. ठीक है. नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास टाइमिंग ऑफ एनालिसिस. फ्रेश सैंपल्स इज प्रिफर्ड. कंटामिनेशन विद द यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया may result in the loss of usefulness of urine for the diagnostic purpose if it is allowed to stand for the several hours at a room temperature. देखो, अब हमने कंटेनर के बारे में बात कर ली, टाइमिंग ऑफ कलेक्शन के बारे में बात कर ली. अब बात करते हैं टाइमिंग ऑफ एनालिसिस कि यूरिनलाइसिस किस टाइम पे परफॉर्म करा जाए. सो सिंपली जो भी फ्रेश सैंपल हमने कलेक्ट करा, देन आफ्टर कलेक्टिंग द फ्रेश सैंपल वी हैव टू मूव फॉर द एनालिसिस एंड द डायग्नोस्टिक पर्पसेस. ठीक है. क्योंकि अगर हम तुरंत सैंपल का एनालिसिस नहीं करेंगे, देन द यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया से वो यूरिन कंटामिनेट हो जाएगा एंड दैट विल लॉस द यूजफुलनेस ऑफ द यूरिन, जिसकी वजह से हमारे जो डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स आने वाले हैं दैट विल हिंडर एंड वी विल नॉट रीच टू द एक्यूरेट रिजल्ट्स और द प्रिसाइज रिजल्ट्स. ठीक है. देखो, सिंपली मैंने क्या कहा कि आपने यूरिन कलेक्ट कर लिया किसी कंटेनर में. ठीक है. कंटेनर कैसा था, ग्लास वायल्स हो सकते हैं और डिस्पोजेबल प्लास्टिक कंटेनर्स हो सकते हैं. ठीक है. देन टाइमिंग क्या थी कलेक्शन की, अर्ली मॉर्निंग सैंपल, जो एकदम अर्ली मॉर्निंग सैंपल से आपने वो कलेक्ट करा. ठीक है. अब पर्पस क्या है कलेक्शन का, वी हैव टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ अ टेस्ट ऑन द यूरिन दैट विल हेल्प अस टू जज द डिफरेंट कंडीशंस इन दैट पर्टिकुलर एनिमल फ्रॉम व्हिच द यूरिन इज बीइंग कलेक्टेड. ठीक है. तो हमने कलेक्ट कर लिया कंटेनर में. ठीक है. टाइमिंग थी हमारी अर्ली मॉर्निंग सैंपल. उसके बाद हम तुरंत क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे. अगर हम इस यूरिन का एनालिसिस तुरंत नहीं करते हैं, देन इट विल गेट कंटामिनेटेड फ्रॉम द यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया. अब जब यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया इसमें आ जाएंगे, इसको कंटामिनेट कर देंगे, देन इट विल लॉस द यूजफुलनेस ऑफ द यूरिन. अब यूरिन ये किसी भी काम का नहीं है. इट विल नॉट गिव द रिजल्ट्स दैट फॉर विच वी आर looking for. ठीक है. So we have to prefer the fresh samples for the analysis. ठीक है. Now this is very important note. Simply the urea splits to the ammonia cause the alkalization of the urine which dissolve the cells and the cast. Urine preserved by the refrigeration is suitable for the examination for 2 to 3 hours. देखो, अब जो हमारा यूरिया होता है वो स्प्लिट कर जाएगा अमोनिया में, जिसकी वजह से यूरिन का पीएच जो है वो इंक्रीज कर जाएगा. बेसिकली यूरिन की जो अल्केनिलिटी है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो सेल्स और कास्ट प्रेजेंट है यूरिन में दैट विल गेट डिसॉल्व्ड एंड इट विल हिंडर द रिजल्ट्स फॉर व्हिच वी आर लुकिंग फॉर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सैंपल. ठीक है. यूरिया था, अमोनिया में स्प्लिट हो गया, पीएच बढ़ गया. जब पीएच बढ़ गया तो अल्कलिनिटी बढ़ गई. अल्कलिनिटी बढ़ गई तो इसका मतलब जो भी सेल्स और कास्ट थे यूरिन में प्रेजेंट वो डिसॉल्व हो गए. इसका मतलब क्या हुआ, यूरिन की यूजफुलनेस खत्म हो गई. जब यूरिन की यूजफुलनेस खत्म हो गई तो अगर हम उसका डायग्नोसिस करते भी हैं तो इट विल नॉट गिव अस द एक्यूरेट रिजल्ट्स फॉर व्हिच वी आर लुकिंग फॉर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सैंपल. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज दैट यूरिन प्रिजर्व्ड बाय द रेफ्रिजरेशन इज सुटेबल फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 2 to 3 आवर्स. देखो, जो भी यूरिन हमने सैंपल कलेक्ट करा, अगर हम उसको रेफ्रिजरेट कर लेते हैं, उसको ठंडा कर लेते हैं, so then it is suitable for the examination up to 2 to 3 hours. So simply 2 से 3 घंटे तक हम यूरिन को प्रिजर्व कर सकते हैं by the help of refrigeration. ठीक है.
सो देखो भाई, ये होता है हमारा यूरिन कंटेनर, ठीक है। दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड इट शुड बी क्लीन एंड स्टेराइल. द यूरिन कंटेनर कैन बी ऑफ ग्लास vials too, and this is the catheter that we will use if we are going for a culture sensitivity test from the urine sample of a particular animal. ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, कंटेनर, एंड दिस इज अ कैथेटर. So now moving on, we will discuss about the types of examinations of a urine. So the examinations of a urine can be physical, can be chemical, as well as it can be microscopic examination. So अब देखो भाई, अब हम बात करेंगे कि जो यूरिन है उसका एग्जामिनेशन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं. So we can examine a urine sample via physical methods, via chemical methods and via microscopic methods. ठीक है. So first of all, we will discuss about the physical examination of a urine. So under this, the first point is the urine volume. Simply, the urine volume is usually inversely related to the specific gravity. High volume and low specific gravity. Low volume means high specific gravity. The exception here is, in the case of a diabetes mellitus, there is high volume and high specific gravity due to the glycosuria, and in the case of a severe or the terminal nephritis, there will be the low volume and the low specific gravity. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ यूरिन, कि हम यूरिन को फिजिकली किस तरीके से एग्जामिन कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूरिन वॉल्यूम की. सो सिंपली द यूरिन वॉल्यूम इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी. बेसिकली क्या है, यूरिन वॉल्यूम इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी, कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी तो यूरिन वॉल्यूम घटेगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी तो यूरिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हाई वॉल्यूम लो स्पेसिफिक ग्रेविटी. अगर यूरिन की वॉल्यूम ज्यादा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस इनवर्स रिलेशन. और अगर लो वॉल्यूम है यूरिन का तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहां पे हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी. ठीक है, ये जनरल बात है. लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है. Basically, if a person or if an animal is suffering from the diabetes mellitus, then there will be the high volume and high specific gravity due to the presence of glucose in the urine, that is glycosuria. देखो, बेसिकली अगर कोई एनिमल डायबिटीज मेलिटस से सफर कर रहा है, ठीक है, एंड हम उसका यूरिन सैंपल कलेक्ट करके यूरिन वॉल्यूम को जज करते हैं, तो वहां पे ये इनवर्स रिलेशन फॉलो नहीं होगा. वहां पे हाई वॉल्यूम होगी और हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया. ठीक है, द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज द सीवियर और टर्मिनल नेफ्राइटिस. इन दिस केस वी विल फाइंड द लो वॉल्यूम एंड द लो स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है, अगर हमने यूरिन लिया किसी एनिमल का एंड इफ दैट पर्टिकुलर एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम द टर्मिनल नेफ्राइटिस, दैट इज द inflammation of a nephron. So simply in that particular urine sample you will found the low volume along with the low specific gravity. ठीक है, so now moving on, we will discuss about the polyuria, that is the increased urine volume. The conditions of a polyuria can arises in an animal due to two reasons. The reasons can be non-pathological and it can be pathological. So simply the non-pathological reasons are the increased intake of water, use of diuretics, parenteral fluids, salty food consumption and the consumption of corticosteroids. The pathologic reasons are the diabetes mellitus, diabetes insipidus, pyometra, chronic pyelonephritis, severe renal amyloidosis. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the polyuria. That is the increased urine volume. ठीक है, अब क्या हुआ, किसी भी एनिमल में यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो दैट कंडीशन इज नोन एज पॉलीयूरिया. अब इस पॉलीयूरिया कंडीशन के दो रीजंस हो सकते हैं. ठीक है, एक होता है हमारे नॉन पैथोलॉजिकल रीजंस और एक होते हैं हमारे पैथोलॉजिकल रीजंस. ठीक है, अब नॉन पैथोलॉजिकल रीजंस की अगर मैं बात करूं, इट कैन बी ड्यू टू द इंक्रीज इनटेक ऑफ ए वाटर. अगर आप ज्यादा पानी पियोगे तो आपको ज्यादा यूरिन आएगा. सिंपल. द कंजम्पशन ऑफ डायरेटिक्स. डायरेटिक्स वाटर पिल्स होती हैं जो कि जो यूरिन का वॉल्यूम होता है उनको बढ़ा देती हैं. फॉर एग्जांपल लेसिक्स. ठीक है,
Next is parental fluids. Next is increased consumption of a salty food. अगर आप salty food ज़्यादा खाओगे तो आपको ज़्यादा प्यास लगेगी and यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा. And increased consumption of the corticosteroids. ठीक है. Now we will talk about the pathological reasons behind the polyuria conditions in animal. So simply the pathological reasons are the डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस. अगर कोई एनिमल डायबिटीज मेलिटस और इंसिपिडस से सफर करता है तो वहां पे इंक्रीज्ड यूरिन वॉल्यूम हमें देखने के लिए मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज पायोमेट्रा, दैट इज पस फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ अ किडनी. नेक्स्ट इज सीवियर रीनल एमाइलोइडोसिस, दैट इज that is deposition of amyloid proteins in the kidney, and all these conditions will lead to the increased urine volume or the polyuria in the animal. ठीक है. Moving on, we will discuss about the oliguria, that is the decreased urine volume. Simply, the condition of oliguria can arise in a human or animal due to two reasons. It can be non-pathological and or it can be pathological reasons. So simply talking about the non-pathological reasons, it can be due to the decreased intake of water, high environmental temperature, excessive panting, exercise and dehydration. Or coming to the pathological reasons, it can be from fever, edema, obstruction in the urine passage, acute renal failure and chronic primary renal failure. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द ओलिगोयूरिया, दैट इज द डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ अ यूरिन वॉल्यूम. अगर किसी एनिमल में यूरिन की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है तो दैट कंडीशन इज नोन एज ओलिगोयूरिया. अब ओलिगोयूरिया होने के भी दो कारण हो सकते हैं. इट कैन बी पैथोलॉजिकल और इट कैन बी नॉन पैथोलॉजिकल रीजंस. So first of all, we will talk about the non-pathological reasons. It can be decreased intake of a water, high environmental temperature. अगर आप कम पानी पियोगे तो कम यूरिन आएगा. अगर environmental का टेम्परेचर बढ़ गया है तो सीधी सी बात है कि यूरिन की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी. ठीक है. Excessive panting, excessive exercise और dehydration. ठीक है. Coming to the pathological reasons behind the oliguria, it can be fever. अब फीवर जब हो गया तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो यूरिन वॉल्यूम कम हो गया. एडिमा, दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ अ फ्लूइड. ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिनरी पैसेज, इफ देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिनरी पैसेज देन द यूरिन वॉल्यूम विल आल्सो डिक्रीज. एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक प्राइमरी रीनल फेलियर्स कैन बी द पैथोलॉजिकल रीजंस बिहाइंड द ओलिगोयूरिया. So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel. Vet It's You. Thanks for the watching. An initiative by Ankit Kaushik.